Welcome students, welcome to our channel Sportive Lectures by Revival Campus, and today we are going to start exercise 5.1 and its question number 3. And in this question we have to factorize 144a square plus 24a plus 1. First we have to know about its formula, by which formula we have to solve it. As we know, a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. According to this formula, we know first term plus second term whole square is equal to first term square plus 2 into first term into second term plus second term square. We can know about it, and also we can write it as a minus b whole square. You can say a first term minus second term whole square is equal to first term square minus 2 into first term into second term plus second term square, and we can also write it as first term square minus 2 into first term into second term plus second term whole square. Both of these are same, हम दोनों ऐसे ही लिख सकते हैं. तो अगर यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म्स के दरमियान में होल स्क्वायर में प्लस आएगा तो प्लस 2ab होगा. अगर दोनों टर्म्स के दरमियान में माइनस होगा, बाइनोमियल का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 के साथ माइनस आएगा. यहाँ पे हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे उसका इन्वर्स प्रोसेस आ रहा है. हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में फॉर्मूला स्टेट एक्सप्रेशन दे दी, उसको आपने जब क्लोज फार्मूला बनाना है तो उसका क्या तरीकाकार है. यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा. It is 144a square plus 24a plus 1, which is equals to, and we have to write it as 12a whole square. As we know, 144a square is equals to 12a whole square, and plus 2 into first term 12a into second term plus second term हमारे पास क्या 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, then second term is 1. And now according to formula we can write it as first term plus second term whole square, and we can write it as 12a plus 1 into 12a plus 1. This is its solution. This is the first part of third question and its first part. And in second part we have a square over b square minus 2 plus b square over a square. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. वी हैव ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एंड वी कैन राइट इट एज फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज ए ओवर बी इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म हमारे पास बी ओवर ए का स्क्वायर है, एंड वी हैव टू राइट बी ओवर ए. अगर हम b को ए ओवर बी को बी ओवर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों काट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 ही रह जाएगा. देन इट मीन्स आवर फैक्टराइजेशन इज राइट. देन वी कैन राइट इट एज ए ओवर बी माइनस दिस इज माइनस 2, देन वी हैव टू पुट ए माइनस बी होल स्क्वायर, मीन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर. देन फर्स्ट टर्म इज ए ओवर बी माइनस सेकेंड टर्म इज बी ओवर ए होल स्क्वायर. वी कैन राइट इट एज, एंड नाउ वी कैन फैक्टराइज ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए इंटू, अगर होल स्क्वायर होगा किसी भी बाइनोमियल को तो उसी को 2 दफ़ा लिखना है, a ओवर b माइनस b ओवर a. अगर दोनों का सेपरेट अलग अलग स्क्वायर हो तो फिर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, लेकिन दोनों का होल स्क्वायर हो बाइनोमियल का, अगर होल स्क्वायर हो तो उसको 2 दफ़ा एक जैसा ही लिखना है. दिस इज द सेकेंड पार्ट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. एंड इट्स थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, we have to factorize it as x plus y whole square minus 14z, this is z, into x plus y plus 49z square. It means the first term is x plus y whole square and the second term is 7z whole square. Then it means according to first term plus second term whole square is equal to 2 into first term into second term plus second term square. Then we have to write it as minus 2 into first term is x plus y and the second term is 7z. Then we have to write 7z. If we find the product
2 into x plus y into 7z, then this is equals to 14z into x plus y. Then our factorization is right. Then we can write it as first term square minus 2 into first term into second term plus second term square is equal to first term is x plus y minus second term 7z and its whole square. अब यहाँ पे इन तीनों में कोई भी लाइक टर्म नहीं, इट मीन्स ये प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो फिर हम इसको दो दफ़ा ही लिख लेंगे x प्लस वाई माइनस 7z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7z. दिस इज इट्स थर्ड पार्ट एंड नाउ इट्स फोर्थ पार्ट 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12x स्क्वायर किसी का स्क्वायर नहीं है, 27 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो पहला स्टेप हम देखेंगे कि ये कॉमन इनमें क्या आ रहा है. इन तीनों में कॉमन कुछ आ रहा है, 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 में कॉमन क्या आ रहा है. वैसे तो हमें ऑरली भी पता चल जाता है, लेकिन अगर आपको ऑरली नहीं समझ आता तो आप इसको डिवीजन मेथड, जो एलसीएम का डिवीजन मेथड होता है उसके मेथड पे कर लें. ये तीनों किस एक नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं, ये 2 पे होता है, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता. ये 3 पे डिवाइड होता है, ये भी हो जाता है और ये भी. ओके, हम फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे. 3 4 ज़ा 12, 3 12 ज़ा 36 एंड 3 9 ज़ा. अब ये तीनों किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं होते, इट मीन्स के कॉमन हमारे पास सिर्फ क्या होगा तीनों में 3. देन 3 इंटू 3 4 ज़ा 12 4x स्क्वायर माइनस 3 12 ज़ा मीन कि यहाँ पे 12 है 12x प्लस 9. दिस इज इट्स फर्स्ट स्टेप कि हमने पहले 3 कॉमन लेना है और मीनिंग. अब देखें 4x स्क्वायर भी 2x का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है. इट मीन्स कि अब हमारे पास ये फार्मूला बन सकता है 3 इंटू 2x 4x अपार 2 का 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या है 3 स्क्वायर. इट मीन्स कि सेकेंड टर्म हमारे पास 3 होगा. अब ये हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग 3 इंटू 2x minus 3 whole square, then we can write it as 3 into 2x minus 3 into 2x minus 3. This is its fourth part. ये था जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 फैक्टराइजेशन का. इससे पहले हमने जो मेथड्स किए उसमें हमारे पास सबसे पहले जो मेथड था उसमें हमारे पास जो टर्म्स थी उसमें होल पूरी एक्सप्रेशन में हमने कॉमन लेना सीखा फैक्टराइजेशन का प्रोसेस में. सेकंड टर्म में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में 4 टर्म्स थी और उनमें पहली 2 में और लास्ट 2 में कॉमन लेना सीखा और यहाँ पे हमने फार्मूला को फैक्टराइज करना सीखा. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम इसी तरह का एक और फार्मूला सीखते हैं. तब तक के लिए इजाज़त दें. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.